کلات آل پاکستان وابڈا ایٹرو الیکٹرک یونین سی بی اے بلوچستان کے زیر اہتمام کلات میں غزہ سرکل کے نومنتخب کابینہ کی تقریب عرف برداری اور سیفٹی سیمینار کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب سے قبل کلات پہنچنے پر غزہ سرکل کے عہدیداروں و کارکنوں نے صوبائی قائدین کی بھرپور استقبال بھی کی۔ مزدور داڑے علم مزدور آتا ہو رائے سنت سے وقت ہوتے نہ حیران کرے دنیا ہائیڈرو یونین نانا نکایت حاجی رمضان محمد یار حلیزی۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے شروع کیا گیا، جس کے بعد غزہ سرکل نے اپنے مرکزی قائدین اور افسران کو بلوچی پگڑی بھی پہنایا۔ اسٹیج کے فرائض ماجد عقیل سر انجام دے رہے تھے۔ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ۔ مزدور داڑے علم مزدور آتا ہو رائے سنت سے وقت ہوتے نہ حیران کرے دنیا ہائیڈرو یونین نانا نکایت حاجی رمضان محمد یار حلیز محمد یار علی صاحب جو یہ وہ قابل قدر لیڈر ہے جو مزدوروں کے لیے سلاخوں کے پیچھے بھی زندگی گزاری ہے۔ وہ بے بنیاد الزاموں کا سامنا کیا، بیماری کی حالت میں مزدوروں کی خدمت کی۔ قبائلی دشمنی کی وجہ سے گھر سے نکلنا اس عظیم لیڈر کے لیے مشکل تھا۔ گھر سے نکلنا سمجھو موت کو دعوت دینے کی مترادف تھا۔ میں اپنے اس عظیم لیڈر کو سب سلام پیش کرتا ہوں کہ سر پر کفن باندھ کر مزدوروں کی نکلنا اور لیڈر کی بس کی بات نہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایسی کیسکو غزدار سرکل کرم بخش بادنی تھے۔ تقریب البرداری میں مرکزی جوائنٹ صدر و صوبائی چیئرمین حاجی محمد رمضان چکزئی نے نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ بطور یونین عہدیدار جو آپ کو عہدیدار آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین سی بی اے بلوچستان، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بے حیثیت یونین عہدیدار یونین اعضاء کے قواعد و ضوابط کے مطابق وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین سی بی اے بلوچستان اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بحیثیت یونین عہدیدار یونین اعضاء کے قواعد و ضوابط کے مطابق ادارے کی ترقی، صارفین کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے، کارکنوں کی فلاح و بہبود اور یونین کو متحد و منظم کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے محنت و ایمانداری سے کام کروں گا۔ آل پاکستان وابڈا ایٹرو الیکٹرک ورکر یونین سی بی اے کے مرکزی جوائنٹ صدر و صوبائی چیئرمین حاجی محمد رمضان چکزئی، صوبائی وائس چیئرمین حاجی عبدالباقی لیڈی، صوبائی جوائنٹ سیکرٹری ملک محمد یار علیزئی، ایسی غزدار کرم بخش بادنی، ایکسین کلات محمد عارف ساسولی، ایکسین غزدار سیف اللہ، ایکسین نوشکے قاضی نوید احمد، ایس ڈی او خالق آباد منگچر امیر رمضان لانگاؤ، ایس ڈی او کلات مسکان لیڈی، غزدار ون کے ایس ڈی او عبدالباسط بنگلزئی، عبدالرؤف سمرو سرکل، غزدار چیئرمین محمد اسحاق لیڈی، ڈویژنل چیئرمین کلات عبدالمالک موسیانی، ڈویژنل چیئرمین کلات و دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزدور وابڈا کی بہتری کے لیے مزید محنت کرے، ادارے کو مزید مضبوط اور منافع بخش و بہتر کرنے کے لیے صارفین کے ساتھ اچھا رویہ اپنائے اور زیادہ سے زیادہ ریکوری کو یقینی بنائے۔ سارے گریڈوں میں پانی، کھمبے، سب کچھ آپ کے ساتھیوں نے، ان مزدوروں نے، جن کی تعداد بھی کم ہے، جو اس وقت بڑھتی ہے
ये 40% तादाद काम कर रही है और 60% कम है। इसके बावजूद आपने बिजली सबसे पहले बहाल की और ये ऐद किया कि हमने किसी भी वजीर, मुशीर, MPA, MNA, सरदार खान, नवाब इसकी तरफ रुजू नहीं करना है। हमने उस कंज्यूमर को जिसको हम 200 रुपए, 500, 1000, 10, 1 लाख रुपए का बिल देते हैं और वो बिल जमा करता है, हमने उसकी इज्जत करनी है। तो आपका दुकान, वो आपकी दुकान में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अफसर भी बैठे हुए, मैं मजदूरों की तरफ से, तो मुझे ये इल्म है कि मजदूरों का कमान यूनियन के साथ है और हमने मजदूरों के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाई है कि वो अपने नंबर से प्रमोट होते हैं, वो अपने नंबर से तबादले आते हैं, उनका जैसा टाइम पूरा हो जाए वो अपने घर के करीब जाता है। सबके साथ बच्चे भर्ती होते हैं, वो तमाम के साथ इंसाफ हो रहा है। मांडियार साहब, आपने तो बताया, तो आपकी कुर्बानियां भी ढकी छुपी नहीं है। आप भी इस पूरे सर्कल के मजदूरों की आवाज हो। यहाँ तमाम लोग आपको जिस वक्त पुकारते हैं आप उस वक्त पहुंच जाते हो, आप इनकी आवाज हो। जैसे मुझसे पहले एक साथी ने बताया कि इस आवाज को दबाने के लिए झूठे केसेस भी बनाए गए, झूठे तरीके से आपको अंदर भी किया गया और तरह तरह की जो है ना तकलीफें, ज़हनी तौर पे आपको ये तकलीफें भी दी गई। लेकिन अल्लाह के फजल करम से और कायदे मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद रमजान अचकज़ई साहब की कोशिश और जद्दोजहद से और आप तमाम साथियों की जद्दोजहद से वो तमाम के तमाम झूठे जितने भी इल्जामात थे उनको लेने के देने पड़ गए और उनके मुंह पे लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुरखरू हो के आज भी अपने मजदूरों के दरमियान बैठे हो। 2000 से पहले ये जो निष्कारी का नाटक, जिसका तलवार आज तक हमारे आपके सर पर लटक रही है, इसमें हमारे मुखलिसाना कायदीन का जद्दोजहद, जिनके साथ अल्लाह का मदद था, आए रहेगा। इनकी जद्दोजहद की वजह से आज तक निष्कारी को इन्होंने रोक के दिखाया है। ये यूनियन पाकिस्तान बनने से पहले CBA था, अभी भी आज भी शुक्रल्लाह ये CBA है। ये इसलिए CBA है, हमारे कायदीन ने इस जिंदगी को मकसद बनाया और इस जद्दोजहद को मुखलिसाना तरीके से जद्दोजहद का इन्होंने आगाज किया। जिनका जद्दोजहद मुखलिसाना होगा, जिनका सोच मुखलिसाना होगा, जिनका सोच ईमानदारी वाला होगा, उनके साथ अल्लाह का मदद होगा। इनका हमारे कायदीन के साथ अल्लाह का मदद था, मदद है और मदद रहेगा। ये यूनियन कुर्बानियों से बना है, ये आपके सामने है। इसने भी ऐद किया है। मुझे हाजी रमजान अचकज़ई के नक्श कदम पर जाते हुए मैं फख्र करता हूँ और इसने आपके सामने एक बार नहीं 2 बार ये ISO बना, ISO का जो प्रमोशन है इसने मतलब ये के लेने से इनकार किया। इसने कहा मैं अफसर नहीं बनूंगा, मैं ओहदेदार बनूंगा, मैं मजदूरों का खिदमत करूंगा। ऐसे ये मैं आपको जो मराहत आपको मिलते रहे हैं, जो आपके सिकेले बन गए हैं, पहले ये रंग का सिकेल ठीक था, आज शुक्रिल्लाह ये रंग से लेकर ILS तक सिकेलों का बड़मार हुआ। आपको वक्त पे अपग्रेडेशन मिल रहा है, आपको वक्त पे प्रमोशन मिल रहा है, आपको वक्त पे वर्क मिल रहा है, आपको वक्त पे तनख्वाह मिल रहा है, आपको वक्त पे मेडिकल बिल्स मिल रहे हैं। ये जद्दोजहद मुखलिसाना था और हमारे मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इन कुर्बानियों की वजह से जा रहे हैं। सेफ्टी सेमिनार भी आए, मैं सेफ्टी सेमिनार के हवाले से एक की पॉइंट पे मैं बात करूंगा, दूसरे पॉइंटों पे मेरा साथी बात करेंगे। अजीज साथियों, यहाँ पहला फिलेक्टर जो पहला नंबर पे है अदारे की तरक्की। आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये अदारे की वजह से है। आज आप लोगों ने यहाँ एक बेहतरीन पंडाल सजाया है, ये अदारे की वजह से है। आपके साथ कोई साइकिल मोटर है, कोई गाड़ी है,
कि घर में कोई बच्चों का अखराजात है, आपके बच्चों का तालीम है, जो भी जितने भी मामलात है, आज ऑफिसर ऑफिशियल दोनों आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये सब अदारे की वजह से है। ये अदारा होगा, ये अदारा होगा, हम और आप होंगे, हम और आप होंगे तो यूनियन होगा। अगर यूनियन होगा, इसी तरह आपका सिकेले बढ़ेंगे, इसी तरह आपको वक्त पे टीए मिलेगा। इसी प्रेस के सामने जाओ, देखो मुख्तलिफ झुगियां बनी है, वहां लोग बैठे हुए हैं, मुतालबा कर रहे हैं, न अपग्रेडेशन है, न प्रमोशन है, न ओवरटाइम है, न मेडिकल है। वो मराद क्या है, वो मुतालबा कर रहे हैं हमें तनख्वाह दी जाए। बाकी मुकम्मलों को वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलेगा, आपको घर के अंदर अपग्रेडेशन भी मिल रहा है, सिकेले बन रहे हैं, टीए मिल रहा है, आपका मराद जितने भी कायदे मजदूर और यूनियन ने मंजूर करवाए आपको वो घर में मिल रहे हैं। भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ने मेरा और आपका रिस्क एक बाइज़्ज़त अदारे में मुंसलिक किया। मैं और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस अदारे में मुझे और आपको यूनियन वापदा है, जो यूनियन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। हमारा इदारा है तो हम हैं। इदारे की तरक्की और उसकी बका के लिए मेहनत शर्त है। तो उम्मीद यही रखता हूँ कि इदारे की बेहतरी के लिए इस प्लेटफॉर्म से आप मेरा भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, लिहाजा बराए मेहरबानी करके आप अपनी TNT को फर्दन PPE को फर्दन चेक करते जाएं और उसके साथ आप इसका इस्तेमाल भी करें। ये नहीं कि सिर्फ आपने उनको जो ना लेकर रख दिया है बॉक्स में, नहीं, उनको आप उठाकर उनको इस्तेमाल करें। अगर किसी में कोई कमी बेची है तो वो मेहरबानी करके कभी भी काम ना करें। अगर वो क्लियर हैं तो इसके बाद जाकर वो HTLT पे अपना काम करें। ये नहीं कि और कॉन्फिडेंस में जाकर कि मैं अभी लाइनमैन फर्स्ट बन गया हूँ तो अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये जो हादसा होते हैं वो और कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। उनको ताकत दे, वो लोग वो खुलूस से इस इदारे की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। आज के दिन के हवाले से चूँकि थोड़ा सेफ्टी का भी जिक्र हुआ, सेफ्टी जो है वापडा की पॉलिसी है। इमरजेंसी ऑफ वर्क कैन नेवर जस्टिफाई इंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ एनीवन। जल्दबाजी से कोई काम ना हो। तो मैं नई काबीना से इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी काम हो वो उसको तसल्ली से करें और हर हफ्ते अपने डिवीज़न सब डिवीज़न में सेफ्टी परेड रखें, ताकि कारकुनों को, अपने दोस्तों को ये बार बार मैसेज दिया जाए कि सेफ्टी पर अमल पैरा हो। अपनी सलाहियतों को इस इदारे की तरक्की और हमारे जो है ना वो सार्फिन की फलाह की रोटी रोज़ी वाबस्ता है। ये महकमा हमारी पहचान है। इस महकमे की वजह से हमारी इज्जत है। सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत, इदारे की तरक्की और सार्फिन की खिदमत हमारा अवलीन फर्ज है। साथी ने बताया कि इदारे की तरक्की आप लोगों के सामने है कि इसको किस हाल में चल रहा है, कितने खसारे पे चल रहा है। उसके बावजूद जो हमारे मेहरबान है, हमारे अफसरान साहिबान है, हमारे यूनियन के जो लीडर साहिबान है, कोई एक बंदा भी बोले इस महीने मुझे टीए नहीं मिला, इस महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिला, इस महीना मुझे हमारे जो बकायजात है वो नहीं मिले। खसारे के बावजूद ये सारे सब कुछ हमें मिल रहे हैं कि सारा स्टाफ खुददार भेज रहा है, उसके बावजूद वहाँ भी स्टाफ की कमी है, हर जगह है। तो ये स्टाफ की कमी है, इसके लिए कोई न कोई तरीका अपनाए ताकि भर्तियाँ हो जाए और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कंपनियों की निजकारी को मजदूर कुश समझते हैं और किसी सूरत में निजकारी नहीं होने देंगे। वापडा मुल्क का सबसे मुनाफा बख्श इदारा है, मगर इस इदारे को तबाह करने के लिए निजकारी जैसी साजिश के ज़रिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। निजकारी के बाद वापडा की हालत स्टील मिल, PIA व दीगर इदारों की तरह होगी जो किसी सूरत कबूल नहीं करते।
मुकर्रीन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो काम के दौरान ज़रूरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपनी जानों की हिफाजत करे और इदारे के असूलों के मुताबिक खदमात के अंजामदही के दौरान तमाम हिफाजती व एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। मुकर्रीन ने कहा कि कानून के मुताबिक आवाम की जान व माल की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी है, मगर अफसोस काम के दौरान हमारे 15 से ज़ायद कारकुनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जिनका मुकदमा दर्ज होने के बावजूद हुकूमत हमारे कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का खून हरगिज़ रायगान नहीं जाने देंगे। मजदूरों के कातिलों की गिरफ्तारी और शहीद कारकुनों को इंसाफ मिलने तक यूनियन चैन से नहीं बैठेगी। शहीद कारकुनों के कातिलों की गिरफ्तारी में रियासत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत लोगों की जान व माल की हिफाजत यकीनी बनाने में गैर संजीदा है और कातिलों के सामने बेबस है। हमारी और आपकी इसमें कुर्बानी है। 130 हमारे शहीदों का मीनार बना है। चीफ ऑफिस में आप जरा देखो, उसमें नाम देखो, 130 हमारे शहीदों के मीनार है। ये सब काम करते हुए शहीद हुए, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं। माजूर कितने, गुलाम रसूल को देखो, वो हमारे दूसरे अब्दुल मालिक को देखो, वो हमारे सनाउल्लाह को देखो, अभी तक उनके पैसे नहीं मिले और हमने इनसे कई मरतबा कभी इधर कभी उधर। ये शुक्र है कि यूनियन है और यूनियन की वजह से ये सारे मसाइल और ये सारे मामला जो है वो हल हो रहे। तो ये हमारी शहीदों की बात है। और अब देखो कि बाद सरे बाजार हमारे ज़ियाउर रहमान शहीद को जो है 25 गोलियां मारी गई है। हमारे जलील उस्मान खेल को गोलियां मारी गई है। अयूब बलोच को गवादर में गोली मारी गई है। हमारा एक चौकीदार था इस्माइल लांगो, वो अरीडीवन में था। इसी तरह 15 से 20 हमारे साथी, उनको गोलियां मारी गई। ये रियासत है, इसमें आइन है। उस आइन में लिखा हुआ है कि तमाम लोगों की जानों की हिफाजत इस रियासत की जिम्मेदारी होगी। अब हम उन शहीदों जिनको गोलियां मारी गई है, जिसके सामने अब सलाम साहब जैसा पढ़ा लिखा इंजीनियर, वो इस माशरे में क्या कहेगा कि कातिल को गिरफ्तार करो। वो उसके पास, उसको बंदूक चलाना नहीं आता है, उसको दुश्मनी करना नहीं आता है। वो इंजीनियर है, मेमार है, उसका भाई मेमार था, वो काम करने वाले लोग थे। लेकिन इधर सारा निजाम जो है वो फेल है। हमारे पास चावनियां भी है, हमारे पास पुलिस भी है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लेकिन हमारे शहीदों के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। उसके लिए हम और आप एक खानदान है। तो आज हम उस हवाले से हम इकट्ठे हैं और इसमें हमारे साथियों ने, जहां पे हमारे उन शुहदा ने, आज उनकी एक तवील लिस्ट है कि जिन्होंने इस तंजीम के साथ रहते हुए इस इदारे में और बिजली जैसी नेमत लोगों को पहुंचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जो आज हमारे दरमियान नहीं है। उन साथियों के कुर्बानियों के साथ साथ हमारे दीगर साथियों की भी कुर्बानियां हैं, जिसकी वजह से आज ये यूनियन कायम व दायम है और अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताबद ये इसी तरह कायम व दायम रहे। इसके अलावा दौरान काम हमारे 100 से ज़ायद कारकुन ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और कई अफराद हमेशा के लिए माजूर हो गए हैं। तकरीब में सूबाई कायदीन ने पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर गुलजार सर्कल के तमाम अहदेदारों और कारकुनों का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब के आखिर में तमाम अहदेदारों व कारकुनों ने अपने शहीद साथियों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की और कहा कि यूनियन तमाम शोहदा की फैमिलीज़ के साथ हर मुश्किल में साबित कदमी के साथ खड़ी है। तमाम शोहदा के ख़ानदानों को इनके हकूक़ इनकी दहलीज़ पर फराहम की जाएगी। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ नादिर खान, ग्लोबल न्यूज़ वॉइस।